Dear members, thank you so much for your active participation in Asian Literary Society's Navras 2021. I hope you enjoyed all the series and programs organized by us during these 9 days. I also want to extend my profound gratitude to all performers and artists who showcased their exemplary talent on our platform during these 9 days. I express heartfelt thanks to all eminent guests whom we invited for the live sessions. Special thanks to ALS admin team members for their perennial support. We look forward to welcoming you again in the next edition of Navras in 2022. Now, without wasting more time, I would like to request Dr. Aparna Bagwe to please address us. Good evening, everybody. I know that all of you have taken part very enthusiastically in this festival of Navras 2021. During this festival, we all know that there have been a lot of events and a lot of presentations on literature, various aspects of art, as well as culture. I know I have seen so many of them and been really impressed by the wonderful talent that is there in our members. It's also been a pleasure to listen to all the panel discussions that we've had on such a diverse, on so many diverse topics. It's been really a learning experience of sorts, and I'm glad that Manoj has even involved the social initiative, which I particularly found very interesting. With today, with these discussions, we've come to the end of our event, and it is our pleasure that we can talk to you for a little while. All of us administrations can interact with you. And with these few words, I'd like to request Vishakha to please take the stage. Vishakha? Yeah, thank you, Aparna. Greetings, friends, writers, and poets. Asian Literary Society celebrated Navras, and we together perceived the essence of the 9 emotions as manifested on the various realm of innovation, that is art, dance, poetry, and literature. Friends, while I traveled on the realm of literature and particularly exploring on multivalent societies mirror South Asian literature, the distinguished panelists who were the retired officers of the civil services and who were the eminent authors, Mr. Balmiki Prasad Singh, Mr. Amit Das Gupta, and Dr. Kuladhar Saikia, have enriched us with their various opinions about language, people, and literature. The entire discussion revolved around identity, because it is identity which shapes culture. Friends, the entire discussion put forth that the quest of the literary minds lies in understanding from essentially philosophical tradition, who am I? Now, the question of who are we actually represents a sociological question. So when we say South Asia, we talk of the mental space that it occupies. Author Dasgupta says that the question of identity synergizes in a manner that we are able to coexist, appreciate, and find it part and parcel of our way of thinking. Further, he says that there's a tendency of dominant identity. This assertion very often subjugates other identities. So author Dasgupta says, South Asia should be seen in the light of a peacock's feather, where we have multiple colors and one color blends into the adjacent color. All the colors are distinct. Dr. Kuladhar Saikia says, the multivalence of Northeast India has given a sort of value system which is convenient for all other smaller communities to grow. Now, there might be non-linearity in relationship of the multiple ethnic groups, and yet
we see there is enough complementarity where various communities share and respect each other's culture. Dr. Saikia says that there are diverse cultures and there is an underflowing current of similarity of cultural ethos and cultural relations in different subgroups of communities in Northeast India, or for that matter, in the countries of South Asia. The discussion also puts forth that language is a powerful indicator of identity. Anything written in Hindi is Hindi literature, or Bangla is Bangla literature, etc., etc. This is how we classify literature. Thus, friends, it is important to give credence to multiple identities as reflected in various writings, says author Dasgupta. Mr. B.P. Singh opines, it is difficult to confine languages to regions when it has a wider appeal. Dr. Saikia also believes that when we look at ourselves in a bigger domain or at our phenotypes, we find cultural linkages with some countries beyond the borders. Now, the discussion also puts forth that, as B.P. Singh said, literature mirrors the mundane life, the living organism and its society, and also something that is beyond, and that is spirituality. Author Dasgupta says, literature will reflect how the author looks at his or her surroundings, given that the kind of contemporary situation that he or she is in. He also says that fiction writing represents the world not in terms of what he sees, but in terms of what he feels. Hence, feeling is a strong emotion by which people sees the world. The entire discussion, as I said, revolved around identity, and Dasgupta hammers around assertion of identity. He said, there is assertion of identity within India where various regions have not found space. That's because authors from certain states, for whatever literary talent, have dominated the landscape. Similarly, in South Asia, Indian writers have dominated the landscape, and also some non-Indian writers are known to us. In Indian bookshops, it is difficult to find books by authors from many northeastern states or from South Asian countries like Bhutan, Bangladesh, etc. Hence, the unified way of looking into South Asia is that we cannot dominate the landscape. Dasgupta says, elaborated coexistence is meant to represent unity in diversity. This is from the perspective of a unified South Asia. Friends, while we close this present discussion here, we all unitedly continue to explore newer and newer ideas in future, and also pursue our goals in the promotion and preservation of Asian art, language, literature, and culture. Thank you. That was a nice recap, Vishakha. Thank you, Vishakha ji. Sorry, actually, Nirmala ma'am could not join through StreamYard, but this is a kind of workaround, a hack. She's on my WhatsApp video call. Nirmala ma'am, would you like to address us? Nirmala ma'am? I can read it out here. Yeah, your voice is coming clearly. You can continue, ma'am. Is it clear? Yes, yes, very, very clear. Okay, then I'll read out my poem. Thank you so much. Namaste, ma'am. Resham ke Phansi. The title of the poem is Resham ke Phansi. Resham ke Phansi फिसलती, खुलती रही जिंदगी. रेशम के थान से फिसलती, खुलती रही जिंदगी. नदी तट की रेत सी कट कट कर बहती रही जिंदगी.
नदी तट की रेत सी कट कट कर बहती रही जिंदगी। ऊंचे मंदिर की सीढ़ियों सी उम्र की सीढ़ी, ऊंचे मंदिर की सीढ़ियों सी उम्र की सीढ़ियां कभी रुककर, कभी थककर और कभी दौड़कर चढ़ती रही जिंदगी। रेशम के थान सी फिसलती रही जिंदगी। जादुई चक्रवात से जीवन के भंवर, जादुई चक्रवात से जीवन के भंवर, ज्वार और भाटों से, ज्वार और भाटों से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी जमीन तो कभी आसमान छूती रही जिंदगी। रेशम के धार से फिसलती रही। रंगों और रिश्तों के मोह बंद, रंगों और रिश्तों के मोह बंद, हर रिश्ते के अलग अलग रंग, हर रिश्ते के अलग अलग, हर रिश्ता पत्ते की नोक पर ओस की बूंद सा सहेजती, हर रिश्ता पत्ते की नोक पर ओस की बूंद सा सहेजती, भावों की बाजेब झनकार बजती रही जिंदगी। भावों की बाजेब झनकार बजती रही जिंदगी। नैनों की पोरों से बहके, नैनों की पोरों से बहके कुछ समय बाहर, कुछ हम बहके। नैनों की पोरों से बहके कुछ समय बहा, कुछ हम बहके। इससे पहले कोई तोड़े, इससे पहले कोई तोड़े, खुद ही झुककर राह बनाई सब कुछ सहके। खुद ही रुककर, खुद ही झुककर राह बनाई सब कुछ सहके। उन राहों की रस्सी पर नटनी सी चलकर, उन राहों की रस्सी पर नटनी सी चलकर अगली पिछली पीढ़ी में संतुलन बनाती रही जिंदगी। रेशम के थान सी फिसलती खुदती रही। हम ही चलते रहते हैं, चला नहीं करती राहें, हम ही चलते रहते हैं, चला नहीं करती राहें। बोझ उठा सकती हैं देखो अब भी ये दुर्बल बाहें, बोझ उठा सकती हैं देखो अब भी ये दुर्बल बाहें। अब तो हम हैं बरगद से, अब तो हम हैं बरगद से, बूढ़े नहीं सिर्फ बड़े, अपनी जड़ों से जुड़े पुख्ता खड़े, अपनी जड़ों से जुड़े पुख्ता खड़े हैं। हमने युग को करवट ले, हमने युग को करवट लेते देखा है, हमने युग को करवट लेते देखा है। टकरा कर युग की करवट से मणिकांचन योग सी निखरती रही जिंदगी। रेशम के थान सी फिसलती रही। अपलक देखे चांद सितारे, अपलक देखे चांद सितारे, मुझे मन्नत के सब द्वारे। इर्द गिर्द बसा लिया अपना संसार, शाखों पर बसा लिए पंछियों के गांव। छांव देख थमते हैं अनगिनत पांव, छांव देख थमते हैं अनगिनत पांव। सहारे को कितनी ही बाहें फैला अपना दायरा बढ़ाती रही जिंदगी। सहारे को कितनी ही बाहें फैला अपना दायरा बढ़ाती रही जिंदगी। रेशम के थान सी फिसलती रही। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू। और आप जुड़ गए, ये बहुत अच्छा लगा। हाँ मैम, आप जुड़ गए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। Thank you for giving me opportunity. I was failed in other platform. That's all. Thank you so much ma'am, bye. Okay, so now Zeba would be addressing us. गुड इवनिंग एवरीवन। ये मेरा पहला नवरस इवेंट था और जिस तरह एएलएस के मेंबर्स ने इसमें जोर और शोर से पार्टिसिपेट किया वो वाकई काबिले तारीफ है और मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आप लोग ने पूरे ये 9 डेज कंप्लीट किए हैं। जब मैंने स्पेशल नीड के ऊपर पैनल डिस्कशन रखा तो ये कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं एक मेन स्ट्रीम ऑडियंस के बीच बैठी हूँ, बिकॉज ऑल ऑफ यू मेड मी फील सो कंफर्टेबल एंड सो कॉन्फिडेंट, स्पेशली मनोज।
कभी कभी ये फील नहीं हुआ मुझे कि पता नहीं ये मेंबर्स मुझे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे. आई वाज सो कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ हिम. तो बड़ी हैरान हुई देखकर मैं नवरस का मंजर. एक तो सबकी कातिल अदाकारी और उस पर जज्बात का कहर. So thank you viewers for joining us in this extravagant flawless event. And finally, a big round of applause for Mr. Manoj Krishnan, Miss Anita, Miss Bishaka Sharma, Miss Aparna, and Miss Nirmala for giving us such a brainstorming sessions. और अगर आप लोगों को मेरी होस्टिंग भी पसंद आई हो तो थोड़ी तालियां मेरे लिए भी. Thank you. Well done. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. और बस जाते जाते 2 लाइन हमारे फाउंडर द ब्रेन बिहाइंड दिस इवेंट मिस्टर मनोज कृष्णन के लिए. कि अब क्या बोलूं तेरी तारीफ में. अब क्या बोलूं तेरी तारीफ में. बड़ा खास है तू हमारी जिंदगी में. गुड बाय, गुड नाइट एंड शब बखैर. बहुत अच्छा, बहुत ही थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा जेबा ने. थैंक यू सो मच. नाउ ओवर टू अनीता मैम नाउ. थैंक यू जेबा और मनोज. आज एक तो बहुत ही खुशी का दिन है कि हम सारे एडमिन एक साथ मिले हैं. एक अलग तरह की एनर्जी मिल रही है कि हम बहुत दिन बाद मिले. ऑफलाइन हमेशा हम मिलते रहे हैं. एक खुशी, मेरे को बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अकेले अकेले हम किसी और से मिलते हैं, लेकिन आज हम साथ में मिले हैं और जेबा से हम आज ही रूबरू हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है. विशाखा, तुम से बात होती रहती है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है तुम मेरे पास बैठी हो. अपर्णा, आप और मनोज से भी हमेशा बात होती रहती है कि आज इकट्ठे अच्छा लग रहा है. नमस्कार साथियों, मेरे आप को तहे दिल से आभार देना चाहती हूँ कि जब जब हमने चाहा, जैसा इवेंट हमने आपके सामने रखा, आपने खुले दिल से उसका स्वागत किया. आपके एक शब्द से हमारे आने वाले हर मेहमान का सम्मान बढ़ा और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात थी. तो मैं उनको तहे दिल से आभार देती हूँ कि आप ऐसे ही जुड़े रहे और बहुत ही मतलब उत्साह बनाए रखा आपने. तो इसके आप हकदार हैं हम सब की तरफ से, एएलएस की तरफ से. एशियन लिटरेरी सोसाइटी जो उसका मोटिव है वो यही है कि साहित्य, कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देना, जिस पर हम मिल करके छोटे छोटे कदम उठाते हैं और उन कदमों को आप सहराते हैं. बहुत अच्छा लगता है. बहुत आभार आपका. एशियन लिटरेरी सोसाइटी वार्षिक उत्सव में हमारे लिट फेस्ट है, भाषा है और महफिल सुखन. अभी हाल में ही हमारे कारवां एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम है जो इंटरनेशनल, जिसमें हमारे साथ जितने भी प्रख्यात लोग जुड़ते हैं, और परवाज जिसको जेबा लेकर आई हैं. तो ये सारे हमारे कार्यक्रम एशियन लिटरेरी सोसाइटी के मंच पर, और हम उस पर बहुत अच्छे से सोचते हैं कि काम हो और कुछ ऐसे लोग हमारे साथ आए जो अपनी जिंदगी और हमारी जिंदगी से जुड़े हैं, और सब हमारे जो एक समूह है और जो हमारे साथ सदस्य जुड़े हैं उनको कुछ हम नया दे सकें. तो उसमें हम काफी हद तक सफल हुए. नवरस ये आया. नवरस एक वर्ष हमारा बीत चुका है नवरस का, लेकिन कहते हैं ना कि जितना गहरा साथ होगा उतना ही, जितना दिनों का होगा उतना ही गहराई बढ़ती जाती है. तो हमारे साथ लोग भी बड़े जुड़ते रहे और इस बार का जो कार्यक्रम है मुझे लगता है कि हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश की. कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें आप लोग हमें बता सकते हैं. और वैसे हमने कोशिश की, हमारे सारे एडमिन ने अपनी अपनी तरफ से बेस्ट सोर्स लगाए और लोगों को हम यहाँ तक लाए, मंच तक, जिन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए, जो कि हमें ऐसे तो पढ़ करके
ऐसे हम सबको थोड़ा थोड़ा जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन जब रूबरू होते हैं तब बात एक अलग होती है। ये आपने महसूस किया होगा, जहां तक मेरा ख्याल है। तो इसमें साहित्यकार हमसे जुड़े, कुछ नृत्य जो साहित्य शास्त्रीय संगीत से जुड़े थे वो लोग हमसे जुड़े, और बहुत सारे कलाकार हमसे जुड़े, और एक कुछ जो मानवीय भावनाओं पे जो काम करते हैं, जैसे समाज पर काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, वो लोग हमसे जुड़े। तो ये खाली ऐसा नहीं था कि हमने साहित्य को ही जोड़ा, बहुत सारे मनों को जोड़ा, बहुत सारे विचारों को एक साथ जोड़ा। तो ये नवरस जो है हर दिन एक रस लेकर आता था, और उस रस में सब भीगते थे। तो इसमें मैं सबको बहुत आभार देना चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़े, उन सभी को, और जिनके जरिए वो जुड़े उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इस मंच से, कि हम आगे भी इसी तरह से काम करते रहे हैं। हमारे सारे कार्यक्रम के पीछे मास्टरमाइंड, समझ ही गए होंगे आप लोग कि कौन है और उसको हम चाहे भी तो छुपा नहीं सकते, क्योंकि वो सच में मास्टरमाइंड है। और उसके लिए उनकी जो सोच है, उस सोच तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। वो उनकी जिंदगी के जो अनुभव हैं, जो उन्होंने अपने जो सीखा है, वो उनकी उम्र से कहीं ज्यादा है। क्योंकि हम रोज उनसे बात करते हैं, रोज उन्हें समझते हैं, वो हमेशा हमें बताते हैं कि वो उम्र में छोटे हैं, क्योंकि हम बड़े हैं उम्र में, लेकिन उनके जो अनुभव है, उनके जो विचार हैं, उनको हम छोटा नहीं कर सकते। उनके साथ हमें चलने में बहुत हमें दिखता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो मैं मनोज आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत सारा आभार आपका। आपका आभार क्या, आपको तो शुभकामनाएं हैं, मुबारकबाद आपको बहुत इस सफलता के लिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, और कुछ पंक्तियों से मुझे लगता है कि मैंने सभी को थोड़ा थोड़ा टच किया। अगर कोई छूट गया हो, मेरे से कोई त्रुटि हो गई, तो हम इन 9 दिनों में अगर हमसे कुछ भी रहा हो तो हम उसके लिए अभी आपसे माफी चाहते हैं। और 2 पंक्तियों से मैं अपनी इस वार्ता को विराम देती हूँ। बीता पल भी कल, आने वाला पल भी कल, बीता पल भी कल, आने वाला पल भी कल, बीच में है जीवित जिंदगी का सुहाना सुनहरा पल। जो बीत गया वो यादों में बसा, जो बीत गया वो यादों में बसा रहने वाला कल, जो आएगा वो ख्यालों की नई तस्वीर देकर जाएगा पल। वो जिंदगी बेहाल थी कल, जिंदगी बेहाल थी कल, उम्मीद है होगी कभी खुशहाल, होगा कभी खुशहाल कल। आज कल की कठिनाइयों में हर पल सामने परीक्षा की घड़ी खड़ी है पल पल। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, आप ऐसे ही साथ देते रहिए और हम ऐसे ही चलते रहें अपने कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद। Thank you, Anita ji, Vishakha, Aparna ji, and Zeba. Thank you for your kind words. And now it's time to end officially the Navras 2021. We'll again meet next year in the next third edition of Navras 2021. Bye. Good night to everybody. Thank you.